Now in our world, most of the जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कंजम्पशन कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप कंट्रीज़. अब डेवलप कंट्रीज़ में जो कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन है उनमें फॉर एग्जांपल कनाडा नंबर 1 है, देन यू हैव द एग्जांपल ऑफ यूएसए. तो दो बोथ कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड का इस वक्त कंजम्पशन में नंबर 1 नंबर 2 है. So those are the developed countries of the world. But when we are comparing these countries with India, China and Pakistan, so वहाँ पर बहुत big difference है क्योंकि यहाँ पर commercial per capita जो consumption है वो बहुत कम है. So same is the case with the areas which are actually called the more developed countries and less developed countries. यानी जहाँ पर 20% पॉपुलेशन है मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एंड 80% पॉपुलेशन है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, मोस्टली एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका. सो दोज आर द एरियाज वेयर वी हैव द डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड वर्ल्ड. तो यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन जो है कमर्शियल एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो कम है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद द एनर्जी रिसोर्सेज. Now in this graph we have certain rise in different colors with the passage of time. The flow is rising gradually. अब इसमें blue color आप देख रहे हैं तो that is controlled by coal. अब जो electricity generation है fuel पे जो depend करती है उसमें coal जो है important role play कर रहा है. Then green जो है oil and gas है and blue is water है. So electricity generation में ये तीनों जो fuel की consumption हो रही है वो वर्ड में आप देख रहे हैं. एंड येलो इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर पावर. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में न्यूक्लियर पावर जो है बहुत माइनर रोल प्ले कर रही है. विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज आर एक्चुअली इन अ राइज. सो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है उसमें फ्यूल जो है कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है. Now farmers in developing countries rely on their own physical energy or the energy of animal to plow and tend the fields. In contrast, agriculture in the highly developed countries involve many energy-consuming machines, such as tractors, automatic loaders, and combine harvesters. Additional energy is required to produce the fertilizers and pesticides widely used in industrialized agriculture. The larger energy input in one region, the agricultural productivity of highly developed country is greater than that of the developing countries. Now, we must keep in mind that the world energy consumption has increased every year since 1982 from 2004 to onward. For example, energy consumption increased worldwide by about 3.4%. The increase is not, however, evenly distributed around the world. China has nearly doubled its energy consumption over the past decades. Similarly, India now uses 50% more energy than it did in the last 1990s. By contrast, the United States uses about 6% more energy than it did a decade ago, and Japan uses only 2.5% more. Why developing countries are actually growing more than the developed countries in percentage? Because we have best example of China. कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो अबाउट 7 to 9% है रिसेंट ईयर्स में. वेयर एज हम अगर जापान की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं और उसमें ग्रोथ रेट कम है. सो जहाँ पर फास्टर ग्रोथ है वहाँ एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के जो मोर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो जनरेशन पावर्स हैं वो ज़्यादा लगाई जाएंगी और इसलिए वहाँ पर जो परसेंटेज है राइज में हमें मिलती है. Now here we have the example of Pakistan, the Pakistan sources of energy. Mostly Pakistan rely on the gas, the oil, the biomass and the hydroelectric जो power generation है and on coal. So most of जो energy है is actually controlled by these sources. तो इसमें हम देखते हैं कि all are actually have equal share, but minor share जो है इसमें हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है जो कि वाटर से हमें मिलती है. पाकिस्तान का जो सरफेस है दैट इज एक्चुअली नॉट ओनली कवर्ड विद द माउंटेनस एरियाज बट प्लेन. सो माउंटेनस से जो है एरिया से हमें जो फ्लो मिलता है उसमें जो एंगल है दैट इज मोर देन 20 डिग्री का है. सो दैट इज सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. तो मोस्टली जो फुट हिल्स हैं जिसमें वी हैव एग्जांपल ऑफ मंगला डैम है दैट इज ऑन झेलम रिवर है, इसी तरह से तरबेला डैम है
जो कि ऑन द रिवर ऑफ इंडस है. सो वहाँ पर हमें फुट हिल्स में या वहाँ जहाँ पर प्लेन एरिया स्टार्ट होता है वहाँ पर ये मौजूद हैं डैम. सो दोज आर द एरियाज वेयर वी हैव द फ्लो ऑफ द वाटर. और इस तरह से ग्रेविटेशन जो फोर्स है उससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेशन हो रही है. बट मोस्टली जो है हम अभी भी रिलाय करते हैं फॉसल फ्यूल्स के ऊपर. Now, a goal of many developing countries is to improve their standard of living. One way to achieve this goal is through economic development, a process usually accompanied by a rise in per capita energy consumption. Now, here is a slide where we see the proposed pipelines of gas and oil through Pakistan. So, the green shows the oil pipeline which starts from Turkmenistan through अफगानिस्तान पाकिस्तान ये इंडिया तक जाएगी. सो इज एक्चुअली द फ्यूचर पाइपलाइन ऑफ विच एक्चुअली गिव्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली पाकिस्तान बट अफगानिस्तान और इंडिया को भी दे सकती है. ये प्रपोज्ड है अभी. एंड सेकेंड प्रपोज लाइन इज फ्रॉम ईरान थ्रू पाकिस्तान टू इंडिया. सो इसमें भी ये फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो कि गैस की रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं वो गैस के थ्रू और पूरे होंगे. इसी तरह सेम इज़ द केस विद इंडिया. सो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये क्योंकि फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन क्लस्टर्स हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैटल करने के लिए ये दोनों पाइपलाइंस जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं. नाउ हियर वी हैव द सम ऑफ द एरियाज विच आर अंडर द कोल पोटेंशियल्स इन पाकिस्तान. सो हम देखते हैं कि सिंध इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन फ्यूचर कोल प्रोडक्शन. वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल के एरियाज हैं उसमें ये थरपारकर का एंड दी साउथ ऑफ सिंध का एरिया शामिल है और इन फ्यूचर में ये प्रोडक्शन दे सकते हैं और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकती हैं इसमें. एंड अदर जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं दोज आर एक्चुअली इन बलोचिस्तान एंड पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा. सो लोकल ये कोल की जो प्रोडक्शन है वो उसकी लोकल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी. Now here we have the example of USA. क्योंकि हम डेवलप कंट्री को डेवलपिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो जैसे पाकिस्तान की हमने एग्जांपल ली. सो दिस कंट्री बिलोंग्स टू द डेवलप्ड रीजन्स. मोर डेवलप्ड एरियाज में है तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2011 में जो एनर्जी फ्यूल कंजम्पशन है उसमें पेट्रोलियम, नेचर गैस, कोल इम्पॉर्टेंट है बट न्यूक्लियर पावर जो है दैट इज़ 8% है. रिन्यूएबल एनर्जी 9% है. रिन्यूएबल में इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ बायोफ्यूल है 21%, हाइडल पावर है 35%. Pakistan is one of the richest country of the world in terms of natural resources with gigantic reserves of coal, gas, gemstones, copper and gold. So उसमें हम एक ही एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सेंडक है, रिकडिक है, those belongs to the Balochistan province, but Pakistan is one of the luckiest country in the world where we have such precious metals and the reserves of coal. So this is actually the one of the gift of God कि पाकिस्तान में इस तरह की हमें रिसोर्सेज मिलते हैं और फ्यूचर में ये एनर्जी क्राइसिस को दूर करेंगे.